حقیقت جان کر وہ سب حیران رہ گئے تھے۔ میں ان کی نظروں میں دھوکہ کھانے کے بعد کا صدمہ صاف صاف دیکھ سکتی تھی۔ یقیناً وہ سب ایک پارسا عورت کی اصل حقیقت جان کر اس بے یقینی کا شکار تھے کہ جو اب تک وہ سمجھتے آئے تھے وہ حقیقت تھی، یا اب جو ان کی نظریں دیکھ رہی ہیں وہ سچ تھا۔ اور پھر میری نظریں اس پر جا ٹھہری جو اس پوری حقیقت کو سامنے لانے کی وجہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں شرمندہ تھی اپنے مسیحا سے، لیکن اس بات سے انجان تھی کہ ابھی زندگی مجھے مزید کیا کچھ دکھانے والی ہے۔ میری زندگی کے اولین دور کی بہت چند یادیں ہی تھیں جو میرے ذہن میں مٹی مٹی سی موجود تھیں، اور ان یادوں میں بھی زیادہ تر اسی عورت کا چہرہ تھا جسے میں اپنی ماں سمجھتی تھی۔ لیکن میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ کوئی ماں اپنی بیٹی سے وہ سب کیسے کروا سکتی ہے جو میری ماں مجھ سے کرواتی ہے۔ لیکن بہرحال میرے پاس کوئی اور رشتہ بھی موجود نہ تھا، اور میں اپنی والدہ سے محبت بھی کرتی تھی، لہٰذا ان کی ہر بات خاموشی سے مان جایا کرتی تھی۔ لیکن اس محبت کا غرور اس دن ٹوٹا جب میں نے ان کے اور ایک آدمی کے درمیان ہوتا مکالمہ سن لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حسب معمول ایک شخص میری ماں کے پاس آیا اور اس نے میری ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کی فنکشنز کی تاریخیں بتا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں جیسے بڑے بیٹے کی شادی میں آپ کی بھیجی لڑکی نے رونق لگائی تھی، ویسے ہی اس بیٹے کی شادی میں بھی رونق لگے۔ ویسے تو جب بھی امی کے پاس اس طرح کوئی شخص دعوت دینے آتا تو وہ مجھے کمرے میں رہنے کی تلقین کرتی تھی، لیکن آج مہمان آیا تو میں اتفاقاً کچن میں موجود تھی، اور امی کا شاید دھیان مجھ پر نہیں گیا تھا، لہٰذا وہ مہمان کو کچن کے سامنے موجود لاؤنج میں ہی لے آئی تھی۔ چونکہ مہمان کے آنے کی خبر پہلے سے ہی ہوتی تھی لہٰذا ہر مرتبہ امی مجھے کمرے میں بھیجنے سے پہلے مجھ سے مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ٹیبل سیٹ کروا لیا کرتی تھی، اور آج بھی لاؤنج میں موجود ٹیبل پر تمام لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کچن سے جھانک کر اس شخص کا چہرہ دیکھا تو یاد آیا کہ 2 سال قبل اس شخص کے بیٹے کی شادی میں رونق لگانے تو میں ہی گئی تھی، لیکن اپنے لیے لڑکی کا لفظ سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں اس بات پر شاید زیادہ دھیان بھی نہ دیتی اگر میری والدہ کا اگلا جملہ مجھے دنگ نہ کر دیتا، جو اس شخص کو کہہ رہی تھی کہ آپ فکر ہی نہ کریں، اب تو 2 سال گزر گئے ہیں اور لڑکی کی خوبصورتی پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے، اس بار تو الگ ہی رونق لگے گی شادی میں۔ اپنی ماں کے منہ سے ایک انجان شخص کے سامنے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر مجھ پر سکتہ ہی تو طاری ہو گیا تھا۔ میرے دل میں کئی سوال تھے جن کے میں امی سے جواب لینا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچن سے باہر آواز ابھری جس نے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ شخص امی سے کہہ رہا تھا کہ جب پچھلی بار وہ لڑکی ہمارے یہاں آئی تھی تب وہ کال پر اپنی امی سے بات کر رہی تھی، جبکہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس لڑکی کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جہاں بھی جاتی تھی وہاں اپنی امی کے علاوہ کسی سے کال پر بات نہیں کرتی تھی۔ تب میری امی نے انہیں جواب دیا کہ ارے وہ تو مجھے امی کہتی ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں اسے آپ کے گھر ان تاریخوں میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ مجھے امی کہتی ہے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا جنہیں میں اپنی والدہ سمجھتی رہی وہ میری ماں نہیں تھی؟ ایسے ہی کئی سوال میرے ذہن میں موجود تھے، لیکن ذہن جواب دینے سے قاصر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مہمان گھر سے جا چکے تھے۔ اتنی دیر میں بھی اس جھٹکے سے سنبھل چکی تھی۔ مہمان کے جاتے ہی حسب معمول امی مجھے میرے کمرے میں بلانے گئیں، لیکن مجھے وہاں نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ وہ میرے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب جاتی مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ تبھی میں کچن سے نکل کر لاؤنج میں جا بیٹھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو ان کی سانس میں سانس آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں، ورنہ یقیناً وہ اتنی پرسکون نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھے معمول کے مطابق مہمان کے گھر ہونے والے فنکشن کی تفصیلات بتانا شروع کر دی، لیکن میری جانب سے غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے انہوں نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ گر کر میرے گالوں کو بھگونے لگے۔ میرے آنسو دیکھ امی فوراً میرے برابر آ بیٹھی اور میرے آنسو صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور جھٹکے سے کھڑی ہو کر سامنے کی طرف چلی گئی۔
वहां जाकर मैंने अम्मी से कहा कि आपने आज तक जो कुछ कहा, फिर मैंने अम्मी से कहा कि आपने आज तक जो कुछ कहा वो मैं मानती गई, लेकिन आज जो कुछ मैंने सुना है इसके बाद मुझे अपने होने पर भी शक हो रहा है। ये सुनकर उनके चेहरे के रंग उड़ने लगे कि मैंने सब सुन लिया है। मैंने उन्हें मजीद बताया कि मैं आज किचन में ही मौजूद थी, जहां आपकी और आपके खुसूसी मेहमान की गुफ्तगू के दौरान कहे गए हर लफ्ज की साफ साफ आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उन्हें कहा, मुझे बस एक बात की वजाहत दे दे कि वो मुझे ही अम्मी कहती है का क्या मतलब है। आपने ये लफ्ज क्यों कहे थे कुछ देर पहले? मेरी बात सुनकर वो खड़ी हुई और मेरे करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैं फौरन पीछे हो गई और उन्हें हाथ उठाकर रोक दिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और फिर उन्होंने मेरे माजी पर से पर्दा उठाया और अपनी कहानी सुनकर मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। उन्होंने शुरुआत की और बताया कि मेरा नाम अनीला है। ये सुनकर मुझे लगता था कि उनका नाम अनीसा है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अपना गलत नाम इसलिए बताया था ताकि तुम कभी मेरी हकीकत जान भी लो तो मुझे किसी किस्म के नुकसान से दो चार न कर सको। उन्होंने कहा, माजी में वो भी मुख्तलिफ फंक्शंस में जाकर रक्स करके अपना गुजर बसर करती थी। उन्होंने बताया कि अनीला खुद एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन जब वो कॉलेज पहुंची तो वहां उन्हें एक ऐसे लड़के से मोहब्बत हो गई जिससे शादी करवाने पर अनीला के माँ बाप राजी न थे। अनीला ने और उस लड़के ने अनीला के वालिदैन को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि लड़का अपने घर से किसी बड़े को बुलाकर लाए, जबकि वो लड़का अनीला को इस बात का यकीन दिलवा चुका था कि उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, इसलिए वो किसी बड़े को नहीं ला सकता है। अनीला के वालिद ने ये सुनकर अपने तौर पर जब लड़के की जांच करवाई थी तो उन्हें काबिल कबूल जवाब ना मिले थे, लिहाजा वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। आखिर से भागने का फैसला किया और एक दिन कॉलेज के बहाने कॉलेज जाने की बजाय उस शख्स के साथ भाग निकली। उस लड़के ने चंद दिन तो अनीला को अपने साथ एक किराए के कमरे में रखा, लेकिन जल्द ही उसकी असलियत अनीला पर खुलने लगी। वो लड़का कोई काम नहीं करता था, बल्कि उल्टा वो कई तरह के बुरे कामों में मुलविस रहता। अनीला घर से भागते हुए अपने साथ जो पैसे लाई थी वो भी अब खत्म होने को थे। वो लड़का अनीला से बार बार पैसे मांगता और अगर उसे पैसे ना मिलते तो वो उसे बातें सुनाता और अजियत देता घर से चला जाता। अब अनीला के पास घर से निकलकर पैसे कमाने के सिवा कोई चारा न था, लेकिन उसने तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी मुकम्मल न की थी कि कोई उसे नौकरी देता। अनीला ने सोचा कि वो वापस अपने घर चली जाए, लेकिन जब वो वहां गई तो घर पर ताला लगा मिला। उसने अपना मुंह ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने एक पड़ोस की औरत से अपने माँ बाप के मुतालिक इस्तफसार किया तो उसे पता चला कि उसके भागने के बाद वालिद को हार्ट अटैक हुआ था। बहुत मुश्किल से उनकी जान बची और उसके माँ बाप अपना सब कुछ बेचकर दूसरे शहर चले गए हैं। कहाँ गए हैं ये बात किसी को नहीं पता थी। अनीला के पास मौजूद आखिरी सहारा भी छिन चुका था। अब उसे लाजमी अपना पेट पालने को कुछ न कुछ काम करना था। वो इसी उधेड़-बुन में थी कि आखिर क्या काम करे और अपने किराए के कमरे की तरफ गामजन थी कि अचानक रोड क्रॉस करते वो एक गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी वाले ने फौरन ब्रेक लगाई और अनीला को उठाकर रोड पर एक साइड पर ले आया। उसे कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई थी। उस शख्स ने अनीला पर बरहमी का इजहार किया तो वो रोने लगी और उस शख्स को अपनी मजबूरी और तमाम तर हालात बता दिए। ये सुनकर वो शख्स कुछ सोचने लगा और कहा कि कुछ दिन में मेरे भाई की शादी है। हम लोग शादी के फंक्शन में रक्स करने वाली कुछ लड़कियां बुलाते हैं। तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। वहां से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उस वक्त अनीला को ये काम भी बहुत भला मालूम हुआ और वो कुछ दिन बाद उस शख्स के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई, जहां उसे रक्स करने के वाकई बहुत से पैसे मिले। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि उसे वहीं 2-3 मजीद फंक्शंस में आने की दावत भी मिल गई। अनीला खुशी खुशी घर गई तो वहां वही लड़का जो अब उसके लिए जान का अजाब बन चुका था मौजूद था और पैसों का मुतालबा कर रहा था। अनीला को उन पैसों से अब अगले फंक्शंस के लिए कपड़े खरीदने थे, क्योंकि उसके पास ज्यादा कपड़े मौजूद नहीं थे। उस वक्त तो वो लड़का लड़कर जितने पैसे ले जा सकता था ले गया, लेकिन उसके जाते ही अनीला ने अपना सामान समेटा और एक होटल चली आई। ये सस्ते इलाके का एक ऐसा होटल था जहां कमरों की कीमत निस्बतन कम थी।
उसने 2 दिन वही रिहाइश इख्तियार की और 2 दिन बाद ही वो अगले फंक्शन में गई। उस फंक्शन से मिलने वाले पैसों से उसने एक हॉस्टल में अपने लिए कमरा ले लिया, जहां उसने बताया कि वो दूसरे शहर से यहाँ नौकरी करने आई है। नौकरी किस नौयत की थी ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। अब वो जब भी किसी फंक्शन पर जाती तो हॉस्टल से नकाब करके निकलती, ताकि कोई उसका मेकअप ज़्यादा चेहरा ना देख सके और ना उसके कपड़े देख सके, और वापस भी वो नकाब करके ही आती। अब वो शादी के फंक्शंस के अलावा भी कई तरह की महफिलों में जाने लगी थी। देखते ही देखते कुछ साल में उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि एक मकान खरीद सकती, लिहाजा उसने एक अच्छे इलाके में मकान खरीद लिया। उस वक्त अनीला की उम्र तकरीबन 26-27 साल हो चुकी थी और अनीला को इस बात का एहसास था कि अब इस तरह की महफिलों में वो मजीद चंद साल ही जा सकेगी और फिर उसकी मांग बढ़ने के बजाय घटती जाएगी। ऐसे में अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मेरी जिंदगी को भी तारीक कर दिया। उसने अपने मोहल्ले में इस बात को मशहूर किया है। अनीला ने अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए सोचा कि उसके पास कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो अगले कुछ सालों में उसकी जगह इन महफिलों में जा सके और पैसे कमा सके। तभी वो मुख्तलिफ जगहों पर जाने लगी ताकि कहीं से किसी लड़की को अगवा कर ले। ऐसे में उसने एक मार्केट में मुझे अपने वालिदैन के साथ देखा। मेरी उम्र उस वक्त 4 या 5 साल थी। मेरे वालिदैन उस वक्त एक दुकान में मौजूद थे और मैं उनका हाथ छुड़वाकर दुकान से जरा आगे की तरफ आ गई थी, लेकिन उनका मुझ पर ध्यान नहीं गया था, जिसका फायदा उठाकर अनीला फौरन मेरी तरफ बढ़ी और मुझे उठाकर रश में गुम हो गई। अनीला ने मुझे बताया था कि चूंकि मैं जवान लड़की थी इसलिए तुम्हारे रोने के बावजूद किसी को मुझ पर शक न हुआ, बल्कि सबको यही लगा कि तुम मेरी ही बेटी हो। फिर मैं फौरन तुम्हें अपने घर ले आई। अपने घर लाकर पड़ोसियों को मैंने कहा कि मेरे शौहर ने बाहर मुल्क दूसरी शादी कर रखी थी, लेकिन उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई और मेरे शौहर इस बच्ची को अकेले नहीं संभाल सकते थे, इसलिए वो बच्ची को यहाँ ला रहे थे, लेकिन उनके यहाँ आने से पहले ही उनका वहीं इंतकाल हो गया और उनके दोस्त बच्ची को मेरे पास ले आए हैं। मेरी रंगत और मेरे नकूश भी कुछ ऐसे थे कि पड़ोसियों ने अनीला की बात पर न सिर्फ यकीन कर लिया बल्कि सब उसको सराहने लगे कि सौतन की औलाद को सीने से लगा कर रखा हुआ है। यूं ही चंद साल गुजरते गए और मेरी उम्र बढ़ती गई तो मैं पिछली बातें भूलती गई और अनीला को ही अपनी माँ समझने लगी। इतना बताकर अनीला खामोश हो गई और कहने लगी, आगे की बातें तो तुम जानती ही हो। मैं ये सब सुनकर शौक की सी कैफियत में बैठी थी। गोया मैं जिसे माँ कहती आई थी वो तो एक अगवाकार थी और मुझे अपने वालिदैन के मुताल्लिक कोई खबर ही न थी। न जाने वो कहाँ थे और कैसे थे, क्या पता उस वक्त वो मेरे लिए कितना तड़पे होंगे और अब मैं उन्हें याद आती भी होंगी, शायद उनकी मजीद औलादें भी हों। मुझे याद आया मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे बहन भाई होते, लेकिन क्या मालूम मेरे असल बहन भाई मौजूद हो, बस मैं ही इस बात से बेखबर थी शायद। मुझे अनीला की बातें सुनकर अपने दिल में दर्द की टीसें उठती महसूस हो रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं हरगिज अब किसी फंक्शन में जाकर तुम्हारे लिए पैसे लाने का बायस नहीं बनूंगी, लेकिन उसने ये सुनते ही मुझे बालों से पकड़ा और कहने लगी कि इतनी मेहनत मैंने तुम पर यूं ही नहीं की थी, तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी ही होगी। मैं उस वक्त बेबस थी, लिहाजा खामोशी से आंसू बहाती रही। कुछ रोज बाद मुझे जिस फंक्शन में जाना था वहां मेरी पुरजोर मुजम्मत के बावजूद मुझे भेज दिया गया था। मैं वहां से कहीं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे सारे पैसे सीधा अनीला को चेक की सूरत में मिलते थे और आखिर मेरे पास पैसे होते भी तो आज तक मैंने अकेले दुनिया नहीं देखी थी। मैं घर से निकलकर कहाँ जाती, क्या करती, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे मोहल्ले में एक नए पड़ोसी आए थे। उस घर के अफराद में एक लड़की मेरी हम उम्र भी थी। वो लोग एक मर्तबा हमारे घर आए, तब अनीला ने मुझे कमरे से निकलने से मना कर दिया और उन्हें भी वही कहानी सुनाई जो सबको सुनाती थी कि अनीला बेवा है और मैं उसकी बेटी हूँ। मैं चाहती थी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि मैं अनीला के चुंगल से निकल सकूं, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा था।
मैं मामूल के मुताबिक फंक्शंस में जाती थी। अलबत्ता मैंने नोट किया था कि जब भी मैं फंक्शन में जाती और वापस आती तो उन नए पड़ोस वालों की मेरी हम उम्र बेटी अपने घर की खिड़की से मुझे देखती थी। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे आते जाते वक्त कोई मुझे देखे, लेकिन वो लड़की बाकायदगी से रिक्शे की आवाज सुनकर खिड़की में उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मुझे इस मोहल्ले में किसी से बातचीत की इजाजत नहीं थी। मैं जब किसी भी फंक्शन से वापस आती तो अक्सर ऐसा होता कि फंक्शन के कपड़े ही पहनकर वापस आ जाती और घर के बाहर उतरकर फौरन घर में चली जाती, तो किसी को कुछ पता न चलता। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी इस हम उम्र लड़की ने इस बात को नोट कर लिया है कि मैं वापसी पर दुल्हनों जैसे लिबास में मौजूद होती हूँ। मैं बस अब दुआ कर रही थी कि कुछ मुआवजा हो जाए और वो लड़की जो मुझे इतने दिन से नोट कर रही है वही मेरे लिए मसीहा साबित हो जाए। मैं आजकल इसी खुशफहमी में रहने लगी थी कि मैं जल्द इस चुंगल से आजाद हो जाऊंगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी। एक दिन मैं सोकर उठी तो लाउंज से गैर मामूली आवाजें आ रही थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो वहां बहुत से लोग मौजूद थे। मैं उन्हें देखकर फौरन कमरे की जानिब बढ़ी, क्योंकि मैं मेहमानों के सामने नहीं आती थी। लेकिन आज पहली बार अनीला ने मुझे वहां बुलाया और कहा, देखो तुम्हारी मांग में किस कदर इजाफा होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। उसने कहा कि ये देखो, ये तमाम लोग तुम्हें अपने अपने फंक्शन में बुलाना चाहते हैं, और अगर तुम किसी दिन मसरूफ हो तो अपने फंक्शन की तारीख भी बदलने को तैयार है, और सबके फंक्शन के लिस्ट बनाकर 40 दिन तक लगातार तुम्हें फंक्शंस में जाना है। सोचो जरा, 40 दिन लगातार तुम्हें इतना काम मिलेगा तो फिर तुम बेशक पूरा साल काम ना करो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी। अनीला ये सब कहते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि जाहिर है ये सारे पैसे उसे ही मिलने थे। अलबत्ता मैं ये सुनकर हत्थे से उखड़ गई और उसे साफ इनकार कर दिया कि मैं 40 फंक्शन एक के बाद एक नहीं भुगता सकती। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि मैं सबके सामने जबान दराजी करूंगी, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी थी। उसने मुझे कमरे में भेजना चाहा, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही और पुरजोर मजम्मत करती रही। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं कर सकती थी। अभी हमारे दरमियान तल्ख कलामी जारी ही थी कि बाहर से दरवाजा बजने की आवाज आई और लाउंज में खामोशी छा गई। अनीला दरवाजा खोलने गई तो मेरी हम उम्र लड़की मौजूद थी, जो खीर लेकर आई थी। मुझे लगा कि शायद वो कुछ कहे, लेकिन वो सब पर एक खामोश नजर डालकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद अनीला दोबारा मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में एक मर्तबा फिर दरवाजा बजाया जाने लगा। इस बार दरवाजा खोला तो उस लड़की के साथ कई मर्द और औरतें हमारे घर में आ गईं। अनीला के ना करने के बावजूद सब आ गए और अनीला से पूछने लगे, तुम्हारे घर में ये इतने सारे लोग कौन हैं? इससे पहले कि अनीला कोई बहाना घड़ती, मैंने कहा, मैं बताती हूँ। अनीला मेरी तरफ मुड़ी ताकि मुझे खामोश कर सके, लेकिन इससे पहले ही एक औरत ने मुझे अपनी तरफ बुलाया और कहा कि तुम डरो मत और सच्चाई बताओ। मैंने उन्हें अनीला की हकीकत बता दी और मजीद बताया कि जब वो मुझे घर ले आई अपने, तो कुछ साल तो मैं घर में ही रही। फिर एक दिन अनीला ने मुझे कहा कि बेटा, अब मैं काम नहीं कर सकती, और अगर काम ना किया तो हम भूखे मर जाएंगे, तो क्या मुमकिन है कि तुम मेरी जगह काम करो? तब मैंने अनीला को कहा कि मैं तो अभी बहुत कम उम्र हूँ, मैं क्या काम करूंगी। उस वक्त मैं अनीला के काम की नौयत से नावाकिफ थी। जब अनीला ने मुझे अपना काम बताया तो मुझे यह हरगिज मुनासिब ना लगा। अलबत्ता अनीला ने मुझे कहा कि आज तक मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया, अब क्या तुम मुझे भूखा मरने को छोड़ दोगी? और जब अपनी ममता का वास्ता दिया तो मैं काम करने पर राजी हो गई। अलबत्ता जब मुझे असलियत पता चली कि मैं उसकी औलाद नहीं, तब मैं ये काम छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। ये सब बताते हुए मेरी आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। सब हैरान थे कि जिस औरत की तारीफें करते वो नहीं थकते थे, ये थी उसकी असलियत। और फिर मेरी उस हम उम्र लड़की को मैंने देखा, वो भी शदीद सदमे की कैफियत में मुझे देख रही थी। कुछ मर्दों ने पुलिस को बुलवा लिया था और अनीला को गिरफ्तार करवा दिया था। मुझे वो नए पड़ोसी अपने घर ले गए। तमाम मोहल्लेदार वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि आप लोगों ने आखिर कैसे उसकी असलियत पहचानी, क्योंकि हम तो इतने सालों तक बेखबर रहे और आपने चंद हफ्तों में ही उसे पहचान लिया। तब मेरी उस हम उम्र लड़की, जिसका नाम लाइबा था,
उसने बताया कि जब हम यहाँ आए तो मेरा दिल चाहा कि मैं इससे दोस्ती करूं, लेकिन जब हम अनीला के घर गए तो अनीला ने अपनी बेटी को बाहर नहीं बुलाया। फिर मैंने नोट करना शुरू किया कि हर दूसरे दिन अनीला अपनी बेटी को नकाब में कहीं भेजती, लेकिन वापसी पर चूंकि देर हो जाती थी, तब ये लड़की नकाब के बजाय किसी शादी के कपड़ों में घर वापस आती। मैं उसकी रूटीन पर हैरान थी। घर में फारिग भी थी तो मुझे ज्यादा तजस्सुस होने लगा। तब मैंने देखा अनीला के घर तो अक्सर कुछ लोग भी आते हैं। मुझे ये सब कुछ अजीब ही लग रहा था, और आज मैंने देखा कि उसके घर पर बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। तब मैंने उसके घर जाने का फैसला किया, और जब मैं उसके घर गई तो बाहर बहुत शोर की आवाजें आ रही थी और मेरे दरवाजा बजाते ही खामोशी छा गई। अंदर जाकर देखा तो ये बिल्कुल खामोश थी, जबकि अनीला गुस्से में थी। मैं समझ गई कि कुछ मसला है, तभी मैंने सबको यहाँ जमा कर लिया। दरअसल हमारा घर मोहल्ले के बिल्कुल कोने पर था, इसलिए वहाँ ये सब कुछ होता रहा पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन लाइबा वाले हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर में शिफ्ट हुए थे। आज से पहले या तो ये घर बंद रहता था या तो नौकरी पेशा दूसरे शहर से आए लड़के यहाँ रहते थे, तो अनीला का पर्दाफाश ना हुआ। पर जैसे ही यहाँ एक फैमिली आई तो अनीला का पर्दाफाश हो गया। ये सब कुछ सुनकर मोहल्लेदार लाइबा को शाबाशी देते हुए अपने अपने घर को चले गए। रही थी अब मैं कहाँ रहूंगी कि तभी लाइबा की अम्मी ने कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूं। मैंने हवन्नक बनकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, ये तस्वीर देखो। मैंने तस्वीर थाम कर देखा तो यूं लगा जैसे ये तो मेरे ही बचपन की तस्वीर हो। मैंने लाइबा की अम्मी को सवालिया निगाहों से देखा तो उन्होंने कहा कि ये तुम ही हो और तुम मेरे भाई की बेटी हो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप गम में मुब्तला ऐसे हुए कि 2 मजीद औलाद होने के बावजूद तुम्हें भुला न सके। वो बस आने ही वाले हैं। उन्हें मैंने कहा है कि जल्दी आ जाए, एक सरप्राइज है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान थी कि क्या वाकई मुझे मेरे माँ बाप मिलने वाले हैं, और मेरी ख्वाहिश कि मेरे भाई बहन हो पूरी होने वाली है। अभी मैं सोच ही रही थी कि मेरे वालिदैन घर में दाखिल हुए और मुझे देखकर अपनी जगह खड़े रह गए। फिर हम सब एक दूसरे से मिले और मेरे वालिदैन को मेरी हकीकत बताई गई। वो मुझे अपने